Back on here on the battle for Bharat with a controversial statement that's been made by the Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav. Before that, quickly reminding you, go ahead and vote, ladies and gentlemen. 8 hours about left for you to go and cast your ballot across the 93 seats. But here's what Ram Gopal Yadav has said. He's gone on to say that Ram Mandir is useless. He says, and I quote, temples are not constructed this way. The Ram Mandir structure is not right and the Vastu is also not right. PM should not be also speaking about Mangal Sutra. राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला। राम का अपमान है जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। बेकार है राम मंदिर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक देख लीजिए क्या ऐसे बनते हैं मंदिर, उसका वास्तु ठीक नहीं है। सिद्धांत इज जॉइनिंग अस लाइव. Ram Gopal Yadav coming out and saying, and then he's also made another comment about Prime Minister should not speak about Mangal Sutra. Well, that's right, Anand. We did manage to speak to him this morning at the time when he came to vote in Saifai. And when I asked him about that Prime Minister's interpretation of Congress's manifesto is that there's going to be the wealth distribution and you know, the Congress will take away Mangal Sutra of women, to which he said, you know, he mocks and perhaps takes a personal jibe at Prime Minister Modi कि प्रधानमंत्री को तो मंगल सूत्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. And then post that I asked him about Ram Mandir, that Prime Minister is saying that those who were invited for the Pran Pratishtha ceremony, they didn't turn up, and that is like Ram का अपमान. To which he said, ये कोई हम राम की रोज पूजा करते हैं, पर ये कोई मंदिर है, ये बेकार मंदिर है, वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, कहीं भी आप जाइए ऐसा मंदिर नहीं बनता है. So this is what Ram Gopal Yadav, a temple that mirrors the Shaili and style of the Somnath, the deity who resembles or looks exactly like the deity and the expressions of the Tirumala Tirupati Devasthanam or Lord Venkatesha there mirrors the look of many of the deities in the south, crafted by a family, and Arun Yogiraj, who hails from a family of Murtikars. Today, Ram Gopal Yadav sits there and says, Bekar ka mandir hai, Vastu kharab hai, and this is not the right mandir Siddhant. Has there been a reaction that's come forth from the Vishwa Hindu Parishad or the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra? Vinod Bansal ji with us on the phone line. Vinod Bansal ji, namaste. Ram Gopal Yadav ji का कहना है ये मंदिर बेकार का मंदिर है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक देख लीजिए, सभी मंदिर देख लीजिए, वास्तु के हिसाब से नहीं बना है मंदिर, इसका तो नक्शा ही खराब है. This is what Ram Gopal Yadav has said. Vinod ji. देखिए, रामगोपाल यादव की बात नहीं है, उसके कॉन्वे के कितने भी नेताओं को ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी को ले लीजिए, वो तो राम मंदिर के बारे में ये तक कह गए कि भाई राम मंदिर के लिए भले डिसीजन आ गया, हम तो उसको वापस रिवर्ट कर देंगे, उसको संसद से कानून बना देंगे. आप देखिए कि ये जो सब रामद्रोहियों की जमात है, उसी को इंडी गठबंधन कहते हैं. ये वही जमात है जो सनातन को नेस्तनाबूद करती है. ये वही जमात है जो कि हिंदुत्व के ऊपर पीछे पड़ी हुई है चून बांध करके. ये वही जमात है जिनको चिढ़ है कि राम मंदिर आखिरकार बन कैसे गया. ये वही जमात है जो कि लगातार हिंदुओं का दोहन, शोषण और उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करती है. ये वही जमात है जो कि लगातार हिंदू इस्लामिक जिहादियों को प्रोत्साहन देती है. पर विनोद जी, ये बात कही उन्होंने जिनके नाम में ही राम भी हैं, गोपाल भी हैं और वो यदुवंशी भी हैं. उनका कहना है कि वास्तु के हिसाब से नहीं बना है ये मंदिर, उनका कि नक्शा ही खराब है इस मंदिर का. ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बड़े प्रसिद्ध वास्तुकार हों, इनके ये इतने बड़े विद्वान हों, इनके माँ बाप को जब पता लगेगा भाई देव की जिंदा हों तो बड़ा दुख होगा कि इनका नाम मैंने राम और गोपाल और यादव तीन रखा है. तीनों के तीनों में कहीं दूर दूर तक नहीं शामिल होते. आप देखिए कि ये जो जमात है ना जी, बात नाम की नहीं है, बात रिलीजन की नहीं है. ये चाहे नाम से हिंदू हो, काम से तो हिंदुओं को दुश्मन है. ये लगातार ये इस तरह की बातें करके और ये जो है वो अपनी जो खीज है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हिंदुओं को गाली देने से, राम मंदिर पर प्रश्न लगाने से शायद हम. पर विनोद जी, क्या इनके आरोप में क्या कोई भी सत्यता है कि वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बना है, मंदिर का नक्शा खराब है? ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है. ये देखिए नक्शा कैसा है और वास्तु कैसी है, क्या है,
ये क्या आपको लगता है कि राम जन्मभूमि न्यास को नहीं पता, या राम जन्मभूमि से जुड़े हुए इतने बड़े विद्वान संत महापुरुष और जो सिद्ध पुरुषों को नहीं पता? ये इतने बड़े विद्वान हो गए क्या? अरे अपने अपने घर की वास्तु को देख लो भाई, अपने पार्टी के वास्तु को देखो ना, अपने इंडी गठबंधन की वास्तु को देखो, वो रसातल में जा रहा है, उसको नहीं देखेंगे। ये राम मंदिर के वास्तु को देखेंगे। अभी तक देखिए ये वो कुनबा है जो कि बात तो यदुवंशी की करता है, बात तो कृष्ण की करता है, और कृष्ण के मंदिर में ही रोड़ा अटकाता है, और राम जी के मंदिर में आज तक जाने में इनको परहेज होता है। और राम मंदिर यही प्रश्न उनसे पूछा गया था विनोद जी, मेरा अंतिम प्रश्न यही प्रश्न उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम तो राम का नाम रोज लेते हैं लेकिन उस मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका वास्तु खराब है, क्योंकि उसका नक्शा खराब है, वो सही तरीके से नहीं बनाया गया। ऐसा है, देखिए कुछ समय की बात और है, ये सारे के सारे रामद्रोही जो है ना, रामत्व की तरफ लौटेंगे, राम मंदिर की तरफ रुख करेंगे, वहीं नाक रगड़ेंगे, मुझे पता है इस बात का। लेकिन आप देखते जाइए आनंद जी, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये लिख के रख लेना, कुछ दिनों के बाद ये सारे के सारे मत्था टेकते हुए नजर आएंगे जी। ये सब रामद्रोहियों की जमात है जो इलेक्शन के दौरान खड़ी होती है। राइट। और जैसे इलेक्शन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण ये अपनों को और अपनी मान्यताओं को और अपनी संस्कृति और अपने धर्म को भी कल्याणी में कोई गुरेज नहीं करते। विनोद बंसल जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। लेट्स जस्ट क्विकली प्ले आउट व्हाट राम गोपाल यादव सेड इन अ क्विक कमेंट विद सिद्धांत हु आस्क्ड हिम दैट क्वेश्चन। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है जो हम लोग, रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है? और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। Siddhant, when you asked him this question, did he even provide any proof or argument to back these kind of claims that he has made? How long was this conversation that you had with him, and what else did he say? Well, Anand, this was a very brief conversation that I had with him at the time of his voting. He completed his vote, and when he came out, I asked this question to him, and in fact, I asked him about the Mangal Sutra interpretation of Prime Minister, the wealth distribution issue that Prime Minister is raising, and then I asked him about that why the Samajwadi clan, the Samajwadi party leaders are not going to seek darshan of Ramlala. Now, Anand, on ground, this is a sentiment. In fact, the day before yesterday, I was reporting from Ayodhya, and there, I met people not only from Ayodhya but different from various other states as well, and they are saying, "Jab tak darshan nahi, tab tak vote nahi." So this is a sentiment on ground that why the leaders from the opposition parties are not coming to seek darshan of Ramlala. Who is stopping them? Which power is stopping them? Why they are not coming? So this is an issue with people, and in fact, people are relating to this issue. In fact, Prime Minister Modi did mention it at several occasions during his public meetings that जब न्योता भेजा गया उसके बाद भी इन्होंने शिरकत नहीं किया, ये कहीं ना कहीं राम का अपमान है. So this is how the BJP is also trying to send out a message, and people are connecting to this message. Thanks for that, Siddhant. Quick comment from inside the studio. Nistula, so when the Prime Minister or Rahul Shankar, when the Prime Minister says something about Musalman, it's Hindu-Muslim, opposition leaders go out and continue to berate Ram and say this about Ram Mandir. That's not polarizing, that's not Hindu-Muslim. Yes, well, it actually only polarizing actually helps the Samajwadi party a lot. It's traditionally helped them. So it's always been, the complaint of the other parties in between who say that between the BJP and the Samajwadi party, they polarize the election, and the election then veers away from so that local means the issues, Samajwadi party etc. believes that abusing Ram will get them votes. So they are saying that there are Muslims in their polarizing the election. He doesn't say he's not abusing Ram. He's saying I pray to Ram, but he basically is identifying the Ram temple as a BJP project. Okay, and the very fact that he's saying कि उसका वास्तु ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, he's trying to say that okay, I am also a Ram Bhakt, but not that kind of a Ram Bhakt. So there is a finessing there that is happening. When it